A very warm welcome to everyone who have joined us in here. So today we are talking about a very important topic, that is stop fixing your child and start understanding their emotions. So if you have ever felt like you are too emotional, too sensitive, or you don't fully understand what you are feeling, this conversation is going to feel personal, not because it's about children, but because it's actually about you. Because what if the way you feel today started in childhood where your emotions were never fully understood? Which is why I am joined by someone who is helping parents change this story at the root. A very great warm welcome to Mrs. Vandana Kumar, a parenting coach and a conscious mother who believes that children don't need to be fixed, they need to be understood. So she helps parents see beyond behavior into the emotions their child is silently carrying. So today, we are not just talking about children, we are talking about how emotionally aware parenting can raise emotionally secure adults. If you have ever felt unheard, unseen, or unable to express your truth, this conversation will hit home in ways you didn't expect. So, again, a very warm welcome to you, Vanna ma'am. थैंक यू वेरी मच गार्गी एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि हमेशा नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा अपडेटेड और अपग्रेडेड होता है एज यू आर और तुमने मुझे इनवाइट किया आई एम थैंकफुल फॉर दैट ग्रेट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट तो तुमने एकदम सही कहा कि सबसे पेरेंटिंग का प्रॉब्लम ही जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट को ही सॉल्व करते हैं क्योंकि उनके इमोशन उनके रेगुलेशन उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होते हैं वो अगर सॉल्व हो जाएंगे तो वो अपने आप समझने लगेंगे कि हम कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है True. So, और starting, yeah, हाँ if you are going, नहीं, okay. So we are starting on our conversation with a very important question. The very first question: what is the most common emotional struggle you see in children today? uh, the most common emotional problem is emotional irregulation, emotional overload. They don't know how to regulate their emotion. अब रो रहे हैं तो रोए जा रहे हैं उनको नहीं पता कि वो क्यों रो रहे हैं या एनजाइटी फील हो रही है कि क्यों वो रो रहे हैं ये इनको पता नहीं और ये इनको क्यों नहीं पता क्योंकि उनके पेरेंट ने नहीं सिखाया कि कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों को और मैं अगर बेसिक से बात करूं तो जैसे हमने पीके में देखा था कि आमिर खान सबका हाथ पकड़ के उसके डाटा का ट्रांसफर कर लेता है अपने पास इन द सेम वे बच्चे एकदम बचपन से वो इमोशनल फ्रिक्वेंसी से अपने ब्रेन में सारा इंफॉर्मेशन सीख रहे होते हैं और बहुत Yes. स्लोली सीख रहे होते हैं और ऑलमोस्ट 5 साल तक तो उनके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है और True. उनका घर का जो एनवायरनमेंट होगा जहाँ वहाँ के लोगों का इमोशन जैसे वो फीलिंग अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है छोटा सा बच्चा भी रो रहा है तो लोग परेशान हो जा रहे हैं तो वो सारी एनजाइटी सारा प्रॉब्लम वो बच्चा एब्जॉर्व कर रहा होता है इसलिए जब वो बड़ा होता है तो वो टैंट्रम क्रैंकीनेस सब उनके उसके साथ ही आता है क्योंकि आपने तो उसे सिखाया नहीं ना कि आ, कैसे हैंडल करना है। अच्छा तुम रो रहे हो क्यों रो रहे हो तुम्हें भूख लगी है तुम्हें प्यास लगी है पानी चाहिए खाना चाहिए ये जो चीजें पहले होती थी ना ये इसलिए होती थी कि आप बच्चे को बता रहे हो कि तुम्हें भूख लग रही है तुम खाना मांगो तुम रो मत तुम्हें प्यास लग रही है तुम पानी मांगो तुम रो मत पर अब जब आप इस तरह से कन्वे नहीं करते हैं तो वो अपना भूल जाते हैं कि मुझे क्या बोलना है और जब वो अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं तो रोते हैं And I think the emotional struggle that children face in childhood, they start showing that as an adult as well. They start showing it as, I don't know what I feel. We are crying and we don't know that chal kya raha hai aakhirkar. Because अब we struggle emotionally. Children struggle emotionally to express themselves. So adults come with the questions that I don't know what I feel.
I feel overwhelmed for no reason. I can't express myself properly. So these are few things that adults struggle if they are not raised in an emotionally aware way. So moving on to our second question. Yeah, you can go on now. Go on. नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ, तुमने एकदम सही कहा, एकदम यही बात होती है कि जब पेरेंट ही अवेयर नहीं है तो फिर वो बच्चे को कैसे रेगुलेट करना सिखाएंगे? जो चीज मेरे पास नहीं है, हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे? एक True. छोटा सा ऑब्जर्वेशन से, एक थोड़ा सा हेल्प होल्डिंग, हैंड होल्डिंग से आप ये चीजें आसानी से सीख सकते हैं, अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम हो रहा है तो। So moving on to our second questions. And this is like very much, I guess everyone wants to know that why do parents feel the need to immediately fix or stop a child's emotion? अगर उसने कुछ गिरा दिया तो तुरंत एक थप्पड़ दे दिया, अगर कुछ भी, दे स्टार्ट लाइक, अगर किसी पब्लिक प्लेस में पेरेंट्स हैव लाइक दे आर डूइंग लाइक देयर आईज लाइक दैट कि घर चलो बताते हैं. So why do parents feel that need to fix it right then and there? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि वो ऑलरेडी टाइम, फास्ट लाइफ के प्रेशर में जी रहे हैं, और ऊपर से स्क्रीन टाइम एक अलग एडिक्शन हो गया है। इस सब के बीच में जो एंजाइटी उनकी चल रही होती है ना, उसमें वो इमोशन, अपना ही इमोशन रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं। फिर जब बच्चे पब्लिकली टेंट्रम करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस समय तो खासकर उनको लगता है कि ये तो मतलब डायरेक्ट मुझ पे आएगा कि मुझे पेरेंटिंग नहीं आती है, इसलिए मेरा बच्चा ड्रामा कर रहा है, या ये रो रहा है, गा रहा है, जो भी कर रहा है। तो हम बस लग जाते हैं कि चलो उसको मारो पीटो, जो भी करो, उसको शांत कर दो। तो एक्चुअली हम बच्चे को नहीं शांत कर रहे होते, अपने डिस्कम्फर्ट को क्लोज कर रहे होते हैं कि मुझे कंफर्टेबल फील हो। और इसको मैं ये बोलती हूँ, प्रायोरिटी सेट करना ही मतलब कंफ्यूजन है प्रायोरिटी सेट करने की। जब बच्चा रो रहा है तो हम सारा काम छोड़ के बच्चे के पास दौड़ के आते हैं कि चलो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है, मेरी प्रायोरिटी True. मेरा बच्चा है। लेकिन जब हम बच्चे को शांत कर रहे होते हैं, तब मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि अरे मेरा वो काम रुका हुआ है, मेरा लैपटॉप ऑन है, मेरी मीटिंग चल रही है, गेस्ट बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ना बच्चे के पास फुल्ली प्रेजेंट है, ना आप पेरेंट्स अपने काम में फुल्ली प्रेजेंट है। तो मैं यही समझती हूँ कि सबसे पहले प्रेजेंट में प्रेजेंट होना सीखिए। अगर आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हैं तो आपका ये जो फिक्सिंग प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स का सबसे इंटेंस पर्सनल डिस्कम्फर्ट होता है जब वो देखते हैं कि बच्चा इमोशनल पेन में है। उन्हें लगता है मैं उसको सेफ गार्ड करूँ, मैं कंफर्टेबल कर दूँ। और इस कंफर्ट को क्रिएट करने के लिए कई बार वो जाते हैं उसको सॉल्व कर देने बच्चे का प्रॉब्लम। जैसे आप बच्चे ने ब्लॉक्स बनाया, ब्लॉक का घर बनाया, उसका गिर गया, वो टूट गया, वो रो रहा है, आप जाएंगे जल्दी जल्दी उसको बना के तैयार कर देंगे। तो आप True. जब कर देंगे तो ये नहीं होगा कि वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा कि मेरा ब्लॉक्स बन गया, बल्कि वो और एंजाइटी में आ जाएगा कि मैं, मुझे जो काम करने में आधा घंटा लगा था, मेरे पेरेंट्स उसको 2 मिनट में कर दिए। मतलब आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट वर्दी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि अगर आपका बच्चा कुछ बना रहा है, उसका टूट गया, तो उसको बोलना है कि हाँ ठीक है, मैं भी कुछ मेहनत करता हूँ या करती हूँ और टूट जाता तो मुझे दुख होता, चलो इट्स ओके टू फील सैड, चलो फिर से बनाते हैं, तुम बनाओ मैं हेल्प करती हूँ। ऐसे करना आपको, बना के नहीं, उसकी किसी भी प्रॉब्लम को आप अगर सॉल्व कर देंगे तो आप उसको फ्यूचर रेडी नहीं कर रहे, आप अपने कंफर्टेबल के बारे में सोच रहे हो। True. Exactly. And I think that's where it starts. We are uncomfortable with emotions. So we try to control them instead of understanding them. यस। I think that what's happened there. Okay. So moving on to our next question. When a child shows a tantrum,
what is actually happening emotionally underneath. ये सबसे बड़ा, ये सब चीजें अगर पेरेंट्स समझ जाए ना एक्चुअली, तो सारे पेरेंटिंग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। मतलब उन्हें लगता तो कि वो समझ रहे हैं, पर होता क्या है कि जब बच्चा टेंट्रम कर रहा है तो दे आर आस्किंग फॉर हेल्प। उसको लग रहा है कि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, फील कर रहा हूँ, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं फीलिंग हो रहा है। उसको जब वो इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो टेंट्रम कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि मैं अभी क्या बोलूँ। कई बार भूखा होना और टायर्ड फील करने से भी बच्चे टेंट्रम करते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो यही तो हमारा बेसिक काम है कि हम उसको बार बार समझाएं, ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या। अगर उसके साथ बैठ के सबसे पहले तो उसे कनेक्ट करें, उसके बगल में बैठे, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो हग करके बैठे, थोड़ा बड़ा 10 साल तक का बच्चा है तो बगल में बैठे, हाथ पकड़े, थोड़ा सा कनेक्ट करें, पीठ पे हाथ फैलाएं, सहलाएं, ताकि वो उसी से आधा कंफर्टेबल में आ जाएगा। आप उसकी आधी एंजाइटी उसी में खत्म हो जाएगी। फिर आप उससे पूछें कि क्या हो रहा है, भूख लगी है, थक गए हो, या तुम दुखी हो, किसी किसी ने मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, उससे हर्ट हो। जब आप उस इमोशन को नाम देंगे ना, तो फिर वो सोच के बताएगा या बताएगी कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। और जब वो चीज़ समझने लगेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जब आप बताने लगेंगे कि अच्छा तुम ये होता तो तुम सैड फील करते हो, ये होता तो तुम सैड फील करते हो, तो उसे लगता है तीसरी बार चौथी बार समझेगा कि अच्छा मम्मा मैं सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, या पापा मैं सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। तो वो बच्चे बार बार रिपीट करके ही चीज़ें सीखते हैं। तो आपको रिपीट वे में उसके इमोशंस को नाम देना है, फीलिंग को नाम देना है, और समझाना है कि ये होने से ऐसा फील होता है। तो बहुत मतलब रेगुलेट हो जाएगा, इमोशनल रेगुलेशन हो I just remember a study from psychology, and I would like to mention here. It is very relevant to parenting and emotions, basically. So I am a psychology graduate as well as the postgraduate. जाएगा। So यस। there was a study where there was a monkey baby, and he was like given. There were two groups. One where monkey is with his mother, the monkey baby in lap of his mother, and the other was a doll similar to like his mother. And the monkey baby was, both the monkey babies were placed. So what happened was that वो monkey, वो बच्चा monkey का, that was given to the mother, real mother, the skin to skin feel. That baby was emotionally stable. He was working in a like growth भी बहुत अच्छी थी उसकी. And the baby who was given to a just a statue, a look alike of a mother but not living mother, it was just a statue. That baby was mentally unstable. The growth, uh, what we say, growth KPIs were very bad, like he was not growing in a well way. So I think it is like something that is matters very much, that how parents are playing the role in raising their child or in their emotional and identical development, basically. यस, इट And मैटर्स। yeah, और सबसे yeah, ज्यादा क्या होता है ना, जब पेरेंट्स गलत लॉजिक देके बच्चे को सिखा रहे थे, लोग क्या कहेंगे, तुम किसके बच्चे हो, तुमको पता नहीं, इस तरह के जब डायलॉग देते हैं ना हम, और वो कंटिन्यूअस देते रहते हैं या लेबल कर देते हैं, तुम्हें तो पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम तो हर चीज गिराते रहते हो, तुम तो ये करते हो। तो वो बहुत इम्पैक्ट, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। तो हमें अपने वर्ड्स exactly. पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं अपने बच्चे को। मतलब हम, हमें तो लगता है कि हम टीज कर रहे हैं या ऐसे ही बोल दिए, मेरा फीलिंग थोड़ी खराब है, मेरा इमोशन थोड़ी खराब है, बट ऐसा नहीं होता। बच्चे तो वही सुन रहे हैं ना, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। Exactly. So if I reframe it, it's like it's not misbehavior, it's that children are emotionally overwhelmed, so they behave the way they behave. And next question is about, what about anger in children? What is actually happening emotionally underneath when they are angry?
दिस आई मतलब विजुअलाइज करने में बहुत हर्ट फील होगा। मैं अगर इसको मैं जैसे समझाती हूँ पेरेंट्स को, ये ऐसा है जैसे कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है, वो हेल्प के लिए मांग रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, चाहे मुझे मतलब मेरे इमोशन रेगुलेट नहीं हो पा रहे, मैं दुखी हूँ, किसी के कुछ कह देने से परेशान हूँ, किसी के कुछ हर्ट करने से परेशान हूँ। और जब वो परेशानी में अपने इमोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंगर शो करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं, साउट कर देते हैं, चुप कर देते हैं किसी ना किसी तरह से। तो वो ऐसा है जैसे एक बच्चा पानी में डूब रहा है और हम उसको और डुबा दे रहे हैं। तो सोचिए, सोच के कितना दिल दहल जाता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम यही कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, कि वो इमोशनली उस समय हेल्प मांग रहा होता है, जब वो चिल्ला रहा है, गुस्सा आ रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, वो हेल्प मांग रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं अनहर्ड फील कर रहा हूँ, अनसीन, अनसेफ फील कर रहा हूँ, मुझे सेफ्टी का फीलिंग चाहिए, पर हम वो कर नहीं पाते। हम इसको, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है, हम सोचते हैं कि मारपीट के बच्चे, हम तो ऐसे ही पल गए तो बच्चे भी ऐसे पल जाएंगे। पर कुछ चीजें आपके जनरेशन में अलग थी, आपके पास चाची, नानी, दादी, मौसी थी आपको इमोशनली सिक्योर करने के लिए, आपके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा ग्रुप था, जो इन बच्चों के पास नहीं है। तो आप उसी तरह से नहीं पाल सकते जैसे आप पले हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि आप अगर एंगर को पनिशमेंट से सॉल्व करना चाहते हैं, एंगर को पनिशमेंट से सॉल्व मत कीजिए। उसको पहले तो एंगर रिलीज करने दीजिए, एंगर रिलीज करने के बाद उसके पास बैठिए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि आप क्या हो रहा था, क्या फील कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, आज दिन भर में क्या क्या इवेंट हुआ, और वो सारे इवेंट को फिर समझिए, उसके साथ बात किए कि क्या बुरा लगा, कैसा बुरा लगा। फिर आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ सेफ्टी के लिए आपसे आस कर रहा था, और फिर उसको वहां पे बताइए हर बार कि मिस्टेक इज ओके, फेलियर इज ओके, सब कुछ ठीक है, क्योंकि कोई तो दुनिया में नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता, कोई तो दुनिया में नहीं है जो फेलियर नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, तुम में कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है, हम सब मिलके एक फैमिली है, सेफ एंड सिक्योर। And the way you said that parents are like कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, like I hear it a lot कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं, पता है हमारे टाइम तो हम ऐसा करते थे, तुम्हारे टाइम पे तो तुमको तो भी बहुत सुविधा मिली हुई है, व्हाई कांट यू डू नाउ? यस, आई वही मैं हैव बोल हर्ड अ रही लॉट। हूँ। हाँ, क्योंकि आपके टाइम में मतलब फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे जनरेशन में इकोनॉमिक फैसिलिटी की कमी थी, फिजिकल मतलब हेल्थ का बहुत इशू था लोगों के पास, ट्रीटमेंट नहीं था अवेलेबल, तो वो प्रायोरिटी थी। अब वो जब अवेलेबल है तो आपको अपने प्रायोरिटी शिफ्ट करना होगा, वो जो आपके पास ऑलरेडी था इमोशनल सिक्योरिटी, आज वो खत्म हो रहा है। तो आपको अब वो फील करना, अपना प्रायोरिटी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास इकोनॉमिक सेफ्टी तो आ गई, फिजिकल ट्रीटमेंट आ गया आपके पास, पर जो उस सब के चक्कर में जो खत्म हो रहा है वो है इमोशनल सिक्योरिटी। तो आपको प्रायोरिटी शिफ्ट करना पड़ेगा अब अपनी लाइफ का। वेरी ट्रू। एंड पेरेंट्स मोस्टली मिस दिस, दे थिंक एंगर, उनका बच्चा एंग्री हो रहा है तो इट इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू देम, कि हाँ, ये तो मेरे तरफ डिसरिस्पेक्टफुल है, बट इट इज एक्चुअली अनमेट इमोशनल नीड, लाइक यू सेड। हाँ, अनमेट इमोशनल नीड है। कई बार बच्चे अपने लॉजिक को समझने के लिए, जब उनका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो वो क्वेश्चन आंसर करके ही अपने दिमाग को समझा रहे होते हैं कि कैसे क्या सेट होगा। और वो जो यस। इतने सवाल जवाब करते हैं तो पेरेंट को लगता है कि मतलब उलट के जवाब दे रहा है, पर वो उलट के जवाब दे रहा है या नहीं दे रही है, वो समझने की कोशिश कर रहा है उसके ब्रेन में क्या फिट हो रहा है लॉजिकली। तो वो भी एक चीज होता है। तो एंगर इज नेवर अ मिसबिहेवियर एंड नेवर नीड, मतलब पनिशमेंट से कभी सॉल्व नहीं कर। And this one is very close to me, the next question, because I was that child. So I'm going to ask that what about the quiet child, वो जो शांत रहता है, and the one who shuts down, what is actually happening emotionally underneath that child? तो मुझे लगता है तुम ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जब बच्चे चुप हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो एंग्री बच्चे से ज़्यादा डेंजरस होते हैं।
क्योंकि वो अपने किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं बोलूँगा या बोलूँगी और फिर मुझे ज्ञान दे दिया जाएगा, लेक्चर दे दिया जाएगा, या कहीं मैं गलत तो ना हो जाऊँ, या कहीं मतलब लोग मेरा मज़ाक तो ना उड़ा दें, या उन्हें लगता है कि मतलब चलो चुप रहने से शांति है घर में या शांति है स्कूल में, तो शांति रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं। तो ये जो शांति बनाए रखने का टेंडेंसी होता है ना, इससे आप अपने आप मतलब मैं कहती हूँ डुप्लीकेट फेस आ जाते हैं आपके, आपके True. जो अंदर में है आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो स्टैक होता जा रहा है। सारे फीलिंग सारे इमोशन कहीं ना कभी वो वल्केनो बन के निकलेगा। तो निकलेगा। इस बेटर कि आप अब, और कई बार ये लोग मतलब पीपल प्लीजिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि चलो हटाओ, तुम बोल रहे हो दिन को रात है तो रात है, तुम बोल रहे हो दिन को रात को दिन है तो दिन है, मुझे कोई तुमसे बहस नहीं करनी, कुछ नहीं बताना कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है तुम्हारा ऐसा बोलना ऐसा करना। तो ये जो है ना ये ज्यादा डेंजरस है। अगर आप मतलब कोई भी बच्चा ऐसा हो रहा है तो पेरेंट को ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक्सप्रेस, इतना ओबीडियंट बच्चा, इतना सेफ बच्चा जो जनरली सोसाइटी में बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो एक्चुअली आप आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उससे बात कीजिए, उससे फीलिंग पूछिए कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या हो मतलब आज तुम्हारे दिन कैसा गुजरा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, प्लीज उसको बताओ, मुझसे शेयर करो, मैं ये सेफ प्लेस है, तुम यहाँ मुझसे बात कर सकते हो, ये जरूरी होता है। दैट इज वेरी मच ट्रू। बहुत मैं अपनी ही बात करती हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन द क्वाइट चाइल्ड, नो टैंट्रम्स, no nothing. I was very quiet child, but inside there is lot of overthinking, volcano of anger, and constantly that performance, and somewhere people pleasing also. It was there until I understood that what are my boundaries and what are my choices. यस, So ये yeah, होता ही है, क्योंकि it was always there. हाँ, और अगर आप लिंगर ऑन इसको कर लेते हो, लाइफ लॉन्ग खींच लेते हो, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप तो बहुत अच्छा है कि बहुत अर्ली एज में ये सब समझ गए हो, तो यू विल रिलीज योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। लेकिन जो उसको कैरी ऑन करते जाते हैं, Hmm. तो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इशू होगा, Of वो course. जॉब में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, उनका सारा उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, सेल्फ रिलायंस नहीं होते हैं, सेल्फ वर्दी नहीं होते, खुद को ही आई एम नॉट इनफ वाली फीलिंग होती है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, ये सब चीज आता है। इवन तो वो मतलब शायद लाखों में से एक है, पर उनको वो अंदर से वो फीलिंग रहती True. है। True. That's really very true. That's the child who learned I am safer if I don't express myself. हाँ, That is the child. And that child grows into adult who says, I don't know what I feel anymore. Everything is happening. They are confused inside. हाँ, सीरियस। So, yeah, I totally understand that. Moving on to our next question. How does emotional safety in childhood shape a child's identity? They feel they will become a confident child, expressive child, अपना व्यू रखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, उनको कोई दिक्कत नहीं है दुनिया लोग क्या सोचेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे सेफ और सिक्योर बच्चे होते हैं, सीन बच्चे होते हैं। उनको घर में हल्ला करें, क्योंकि बच्चों की एनर्जी ऐसी होती है कि अचानक से उनको मन हुआ वो चिल्ला चिल्ला के कुछ बात कर रहे हैं, गाना गाने लगे, कूदने लगे और ये सब करने लगे, तो उनको उस घर में अलाउड है। कभी वो वॉल पे ड्राइंग बना रहे हैं अगर छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं होता कि कितना हल्ला करते हो, चुप रहो ना, कितना गाना गा रहे हो, चुप रहो ना। वो आके स्कूल से अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी है पूरी कहानी सुना रहे हैं स्कूल की, और वो सुन रहे हैं प्रेजेंट में, ये नहीं कि स्क्रॉल करे। हाँ 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 हाँ, आप अगर ये कर रहे हो तो बच्चा नहीं सुनाएगा ना नेक्स्ट डे से, उसे लगेगा कि मुझे कोई सुन नहीं रहा। पर जो बच्चे के पेरेंट और केयर गिवर जो भी है वो प्रेजेंट है उसके साथ और उसको रोक टोक कम कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं एक्सप्रेस करना, रोना हंसना सब, वो बच्चे सबसे सिक्योर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेसिव चाइल्ड होते हैं। और उनका फिर रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, ऑफिस में भी उनका अच्छा रिलेशन होता है सबसे। तो वो मतलब ये बेस्ट वे है टू
allow your child to grow? I totally agree with it. I had my best friend from school, and she has grown. I would like to quote her example. She has always grown in that environment. Uh, Her mother was always like, whatever पूरे दिन में जो भी हुआ है, everything she used to tell to her mother. Even the mother gave a very safe space to express the emotions. So now when she is now adult, she is like very good in a sense that she is outspoken, in the sense whatever she is feeling, she will tell you, she is like expressive, and her relationships are sorted. She is very sorted in what she want to do. Her career is sorted. Everything is at the place. So yeah, I totally understand that. And यही this है is ना so. कि आप बच्चों को जब छोटे में अलाउ करते हो फेल करना, मिस्टेक करना, गलतियों से सीखना, तो वो बच्चे सीखते 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 तो बेटर पर्सन हो जाएंगे ना। जब आप अलाउ ही नहीं करते हो फेल करना, तो बच्चे अभी बेस्ट होने के चक्कर में वो फेलियर तो फेस ही नहीं किए। आप फेल नहीं फेस किए तो आप फेल की गलती नहीं सीखे, तो आप बड़े होके वो गलती करोगे और सीखोगे। तो ये है कि आपको उसी समय वो पूरा फेज ही पेरेंटिंग का इसलिए है कि आप अपने बच्चे को अलाउ करो फेल होना, मिस्टेक करना, और अलाउ उसको, मतलब बोलो कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है। तुम कुछ भी मिस्टेक करके आओ, मेरे पास बोलो, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तुमको प्यार करने के लिए कि तुम ऐसा करोगे तभी मैं प्यार करूंगी, तुम ऐसा करोगे तभी मैं प्यार करूंगी या करूंगा। एग्जैक्टली, दैट इज सो मच एप्रोप्रिएट. आपने बहुत अच्छी बात कही कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड दैट अनकंडीशनल लव इन पेरेंटिंग इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग. पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे से एक्सपेक्टेशन जोड़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं दे हैव दैट ऑन देयर ईगो. ये अगर वो बच्चे ने नहीं परफॉर्म किया, या वो बच्चा उनके मन के हिसाब से नहीं चल रहा है, देन दैट इज नॉट देयर. एंड इससे कहीं ना कहीं वो बच्चे का इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है. सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. And this is so important because identity is not built on what we achieve, it is built on what we are allowed to feel. यस। So moving on to our next question: what happens when a child is repeatedly misunderstood emotionally? ये मतलब जब आप बच्चा गलती किया, आपने ये नहीं पूछा क्या हुआ, क्यों हुआ, आपने मान लिया कि तुम तो बदमाश हो ही, मतलब और तो आपने सुना दिया उसे, आपने पनिश कर दिया, आप रीजन तक भी नहीं गए, कोर्ट तक भी नहीं गए कि हुआ क्या था। दो बच्चे लड़े फील्ड में आज, और मेरे बेटी आके मुझसे बोल रही है या मेरा बेटा आके बोल रहा है कि उसने मुझे मारा। उसने जैसे ही आप सुने कि तुम्हें मारा, तुम तो वही बदमाश, सबसे लड़ते रहते हो, सबसे ये करते हो, सबसे वो करते हो बोल के आप शुरू हो गए, अपने बच्चे को ही ब्लेम गेम शुरू कर दिए। और ये चीज मैं रिसेंटली, मेरी एक क्लाइंट है, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली उसको बोलती रहती हूँ प्लीज मत ये करो, और वो अभी भी करते हैं। मतलब जैसे ही बच्चा स्कूल से आएगा ना, वो सबसे पहले पूछेगी कि आज क्या बदमाशी किया, आज कितना कंप्लेन लेके आया, डायरी में कितना कंप्लेन लिखे हुए। मैं बोली ये भी कोई पूछते हैं क्या बच्चों से, ये पूछो कि कैसा दिन गुजरा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो ये जो, और पेरेंट को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हर्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो लेबल कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो कंटिन्यू उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, तो क्या करेंगे, इतना बदमाश है, इतना ये है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही ना बोलेंगे। तो वो जब आप लेबल करने लगते हैं बच्चे को, अब बच्चा को लगता है कि समझाने का कोई फायदा नहीं। अब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब उसे लगता है कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे डांट लग रहा है, तो पांचवी बार वो आपको समझाना ही नहीं चाहेगा। उसको लगेगा कि जाने दो, अब इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें दो थप्पड़ लगाना लगा दो, या तुम्हें जो भी पनिशमेंट देना दे दो, मैं नहीं तुम्हें बताने वाला कि हुआ क्या था, या मैं नहीं बताने वाली कि हुआ क्या था। तो यू आर नॉट रेडी टू लिसन। तो आप ये सोचो ना कि आप बच्चा दुनिया का प्रेशर झेल रहा है, पीयर प्रेशर झेल रहा है, सब सारा दुनिया तो नहीं अच्छी होने वाली ना उस बच्चे के लिए, किसी के लिए भी नहीं अच्छी होने वाली। अगर घर में भी वो सेफ सिक्योर नहीं है, घर में भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, घर में भी उसको समझा नहीं जा रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा।
तभी वो गलत गाइडेंस में जाता है, गलत फ्रेंडशिप में जाता है और गलत रास्ता पकड़ लेता है। Very true. Um, I totally understand that, and I have seen that even during my school days. I have seen children like that. Even today, I see children going like that, going into like started doing cigarettes, maybe taking drugs. They do that. और प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपग्रेड हुए हैं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अपग्रेड हुए, हमारा ड्रेसिंग सेंस बदल गया, हमारे खाने की क्वालिटी बदल गई, ये सब तो हमारा बदल गया। पर जो एक्चुअली होना चाहिए था कि फैमिली वैल्यू के साथ इमोशनली अपग्रेड करें। हमारे पास अब हमारे पास सब कुछ है, अब हम तो हम अपने बच्चे पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। वो उल्टा हो रहा है, हमें वो चीज हम वैसे किए जा रहे हैं जैसे हमारे साथ हो रहा था 50 साल पहले, जैसे हो रहा था आज भी Yes. हम सोचते हैं वैसे ही करना है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट है। एंड दैट इज समथिंग कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेकंड गेस करते हैं, एंड जो अपने बच्चों को वो बड़ा कर रहे हैं, दे दैट बच्चा जो अडल्ट बन रहा है, दे स्टार्टेड सेकंड गेसिंग themselves. They overthink everything and struggle to feel grounded in who they are. अपने से satisfied ही नहीं है, हाँ, अपने से भागते हैं। और इसीलिए वो So, फिर वो स्क्रीन पे टाइम वेस्ट करेंगे, नेटफ्लिक्स हाँ, पे टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब काम है तो काम किया, काम नहीं है तो वो अवॉइड कर रहे हैं। अपने फीलिंग, अपने इमोशन से भागते हैं, सच में भागते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि मैं ये फेस नहीं कर सकता और इसका yes, सॉल्यूशन क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो मतलब आज के इसके लिए जो मैं कह सकती हूँ कि आज के डेट में बहुत ईजी अवेलेबल है। ये जो थेरेपिस्ट हैं, हीलर हैं, कोचेज हैं, आप प्लीज जाइए। आप मतलब पार्टीज में, मतलब मैं गर्ल्स को देखती हूँ अपने नेल पेंट कराने में इतने इतने पैसे खर्च करती हैं। तो आप प्लीज सही डायरेक्शन में खर्चे कीजिए, आप सही जगह पे जाइए, सो दैट कि आपका, आप सोचो आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो कितना लॉन्ग लाइफ आपको रिलैक्स मिलेगा। तो इसीलिए आज के डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है और आपको ये हेल्प लेना चाहिए। and we come to our last question, that if someone listening this right now, and that person is realizing that this was my childhood, what would you want them to understand now today? नाउ ये कि possess the power to completely rewrite your emotional language। तुम्हारे पास पावर है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने जो हमें दिया है वो ब्रेन, जिसको हम जब चाहें रीराइट कर सकते हैं। अब वो मैजिक है हमारे पास। तो आप बैठो, ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, उसको कंटिन्यूअस जब आप ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा कि मैं जब ट्रिगर होता हूँ तो मुझे क्या फील होता है, मैं जब गुस्सा करता हूँ तो मुझे क्या फील होता है, मैं जब किसी से लड़ लेता हूँ तो मुझे क्या, लेता हूँ या लेती हूँ, आई मीन इट्स यूनिसेक्स। मैं प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना प्लीज कोई अगर। तो ये है कि जब आप ये फीलिंग समझने लगोगे, इन चीज़ों को समझने लगोगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। और इसके बहुत सारे, मतलब मेडिटेशन करो, डीप ब्रेथ करो, ये सब चीज़ जो है ना, इससे थोड़ा सा आपको अपने इमोशन को रेगुलेट करने में, ढूंढने, अपने आप को ढूंढने में रास्ता मिलेगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि आप अभी आपके पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो पहले नहीं होती थी, कोच Exactly. के, हीलर्स के, थेरेपी के, काउंसलर्स के। प्लीज जाइए, हेल्प लीजिए, इसमें कोई टैबू नहीं है। ये आपके लाइफ को रिफॉर्म कर देंगे, आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। आपको वो सब पता है, आज के डेट में सारा नॉलेज सोशल मीडिया पे है। आपको हैंड होल्ड करेंगे, आपको स्ट्रक्चर देंगे, सिस्टम देंगे, और आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और अपनी पेरेंटिंग को भी ट्रांसफॉर्म करो। True, very much true. And ask, this is a very question that had I had in my mind, and I wanted to ask you that how has been your parenting? Like, how many kids you have, and what was your journey? Uh, What you struggle with your kids? Maybe if you're maybe your
आई हैव टू किड्स, दोनों बेटे हैं, और दोनों बार हम बेटी बेटी कर रहे थे, पर दोनों बार बेटे हो गए, वो ईश्वर की मर्जी जो दे। पर ये मैं कह सकती हूँ कि मैं हमेशा ये चाहती थी कि हैप्पी हेल्दी बच्चे हों। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं सोसाइटी बचपन से ऑब्जर्व करती आई कि लोग ऐसा कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा कर रहे हैं ये गलत है। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, मतलब थप्पड़ मार के मुक्का मार के हमें नहीं पढ़ा, पला पाला पोसा गया। और शायद हमें भी इमोशनली एक्सप्रेस करने का बहुत मौका था, हम खुद को एक्सप्रेस करते थे। तो मुझे ये था कि मैं बच्चों को, मतलब मुझे, जब मैं अपने बच्चों को देखती थी मुझे हमेशा लगता था कि हमें जितना मिला फ्रीडम, मतलब फील्ड में दौड़ रहे हैं हम 4 घंटे, हम बच्चों को पार्क लेके जाते हैं 1 घंटा लेके आ जाते हैं अपने साथ। तो हम जब वो सब फ्रीडम नहीं दे रहे हैं उनको बाहर का, तो हम घर के अंदर का अलाउ करें। तो मेरे घर में मेरे बच्चे पूरे वॉल क्रेयॉन से भरे हुए थे, जो चाहे, मतलब मैं हर संडे उनका टॉयज धोती थी ताकि हाइजीन मेंटेन करें, धो के सजा के आती थी, और उस रूम से बाहर निकली वापस आई तो वो सारे फिर फैले होते थे। लेकिन आई वॉज नॉट शाउटिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स, मुझे पता था कि इनको ये भी नहीं अलाउ करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, मतलब वो कहाँ जाएंगे अपने आप को। हम अगर, मतलब जब लोग बोलते थे ना कि इतने सवाल करता है, मेरा छोटा बेटा बहुत सवाल करता था, मतलब मैंने उसे कभी पढ़ाया लिखाया नहीं, वो अपने सवाल से ही उसकी पढ़ाई लिखाई हो गई। तो लोग मुझे बोलते थे तुम इतना जवाब क्यों देती हो, बड़ा होगा तो सीख जाएगा ना। मुझे लगता था कि आज जो जानना चाह रहा है वो बड़ा होने तक इंतजार करेगा क्या। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे आप कनेक्टेड रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को इमोशनली अलाउ करते हैं। मतलब अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, हम भी तो नहीं कर पाते हैं। ये वाली बात होती है कि हम, मुझ में ये गलती है, डैडी ये नहीं कर पाते, एक भाई ये नहीं कर पाता, एक भाई ये नहीं कर पाता। तो ऐसे ही फैमिली होती है, कोई 100% कुछ नहीं कर पाता। तो ये सारी थ्योरी के साथ मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा है। तो आई कैन से कि आज भी मैं कनेक्टेड हूँ, हर दिन हमारी बात होती है, और दे आर नॉट लाइंग टू मी टिल नाउ। अभी भी मुझे वो सब बताते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड फॉर दिस। हाय कारगी। तो पेरेंट्स अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अलाउ योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, उनको हल्ला करने दो घर में। अगर आप, ठीक है, वॉल नहीं खराब करना है तो एक वाइट बोर्ड लगा दो जहाँ बच्चे अपना कलर करें, अपने आप को टॉय बनाए, ब्लॉक्स बनाए। प्लीज़ अपने बच्चों को अलाउ कीजिए टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, सो दैट कि वो बड़े होके एक सिक्योर कॉन्फिडेंट चाइल्ड बने। ग्रेट। व्हाट अ जर्नी। आपकी पेरेंटिंग जर्नी वाज वेरी मच डिफरेंट। मतलब बहुत कम पेरेंट्स ही अलाउ करते कि घर घर फैला हुआ है, टॉयज फेंके हुए हैं, दीवार पर क्रेयॉन से कलर कर लो बेटा, कोई बात नहीं। दैट इज समथिंग लाइक आई डोंट know any parent that does that. Like I have seen, maybe there are people who are that much conscious, they are doing aware parenting. I get that. That is really wonderful. क्योंकि वॉल पे तो आप एक लेयर पेंट कराओगे तो आपका वॉल साफ हो जाएगा, पर बचपन तो दोबारा नहीं आएगा ना। Kabhi nahi. True. Kabhi nahi. So maybe the question was never, why is my child behaving this way? The real question is, what emotion is this behavior trying to communicate? Yes. Your child doesn't need to be fixed, they need to be understood. And maybe part of you needed that too. Yes. So we are done with the questions. Now let's see if someone has asked any questions in our live session. Let's see if anyone have any questions. So people, if you have any questions, please write in the comment section so that we can address that as well.
what questions people have. We have a question from Varshali. She's saying that she just want to know that how do we help kids getting angry again and again on small things? How do we help such kids? हर बार जब बच्चा गुस्सा हो रहा है ना, तो थोड़ा देर तो उसको एंग्री होने दीजिए। जब वो थोड़ा शांत हो जा रहा है, उसको उस समय थोड़ा-सा टच कीजिए। अगर छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटा बच्चा है, तो प्लीज़ उसको टच कीजिए। उसकी पीठ सहलाइए, हाथ पकड़िए, हग कर लीजिए। फिर जब वो शांत हो जाए तो उससे पूछिए कि क्या हुआ? क्यों, किस बात पे गुस्सा हो रहा था? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तुम ही बताओ, उसको अथॉरिटी दीजिए कि तुम ही बताओ, क्या हो रहा था और इसका क्या सॉल्यूशन है? जितना बच्चे को अथॉरिटी देंगे ना, अपने लाइफ का कंट्रोल देंगे, वो उतना ज़्यादा उसको खुद रास्ता निकालेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो उसको अथॉरिटी दीजिए, उसे पूछिए कि क्या था, ऐसे क्या फीलिंग थी, क्या इमोशन था और किस बात पे तुमको गुस्सा आया था। जब धीरे धीरे वो, अगर कोई भी चीज़ बढ़ गया है, जैसे एक ट्यूब बढ़ गया है, तो उसको बहने में, निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अगर कंटिन्यूअस ये चीज़ करते रहेंगे कि उसको टच कीजिए, उसको हग कीजिए, उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए अभी क्या फीलिंग थी, क्या फील हो रहा था, क्या पेट में गुड़गुड़ गुस्सा आया तो पेट में दर्द होने लगा क्या, सर में दर्द होने लगा क्या? अगर, तो बच्चे को ये भी समझ में आएगा कि गुस्सा होता है तो मुझे सर में दर्द होता है या मुझे पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगती है, इस तरह से। तो अगली बार जब उसे गुस्सा आएगा तो वो ये बोल सकता है कि मम्मी मुझे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तो मतलब ये है कि आप उस हर बार उससे पूछिए, इससे पहले क्या हुआ था, किस बात पे ये गुस्सा आया था। और जब आप बार-बार उसके साथ बैठ के, और जब ये करते हैं कन्वर्सेशन ना, तो अकेले में कीजिए। उसको पब्लिकली मत कीजिए कि उसको लगे कि मेरा इंसल्ट हो रहा है। उसके साथ अकेले में बैठ के ये बात पूछिए, तो धीरे-धीरे देखिएगा वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट है। छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है। उनके गुस्से शांत हो जाते हैं, वो समझने लगते हैं कि मुझे ये हो रहा है, इसको मैं ऐसे हैंडल करूँगा। मुझे अगर किसी को मारने का मन कर रहा है तो आप उसको हिट मी दे दीजिए। जो टॉय आते हैं हिट मी वाले के, तुम्हें पंच करने का मन है तो पंच करो इसको, पर तुम्हें पब्लिक को, किसी ह्यूमन बीइंग को हर्ट करने का अलाउ नहीं है। एक बाउंड्री भी क्रिएट करना है, और बाउंड्री क्रिएट करने के साथ उसको एक ऑप्शन देना है, इमोशन एक्सप्रेस करने का। तो वो रास्ता पकड़ता जाएगा कि हाँ, जब वो हिट में हिट कर रहा है तो आपको पता है कि वो किसी बात का गुस्सा निकालने चाह रहा है। अब उससे पूछिए क्या हुआ आज, किस बात पे गुस्सा आ रहा है। फिर कन्वर्सेशन ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड फील करना, सेफ फील करना, बच्चे यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। True. Okay. So we have next question from Nisha. What's the role of social media in parenting nowadays? सोशल मीडिया देखिए एक तरह से तो अच्छा ही है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ तो टिप्स मिल रहा है। हर कोई बता रहा है कनेक्ट बिफोर करेक्शन, रिस्पॉन्ड बिफोर रिएक्शन, क्योंकि यही बेसिक रूल है। तो ये आपको हर कोई बता रहा है। तो आप अगर सिर्फ सोशल मीडिया से ही सीखना चाहते हैं तो कम से कम ये सीखिए। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इंफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको हाउ सवाल में आता है कि मैं क्या करूं, मैं तो रिएक्ट कर देती हूँ, तब मुझे लगता है कि मुझे रिस्पॉन्ड करना था। तो उसके लिए आपको या तो एफर्ट, बहुत एफर्ट करना है। हर सारा नॉलेज है आज के डेट में सोशल मीडिया पे। तो आप बहुत एफर्ट करके सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, या नहीं तो किसी का हेल्प ले सकते हैं। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ये है कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे तो आपको इसके सॉल्यूशंस तो मिलेंगे, दिखेंगे कि हाँ है। अब इम्प्लीमेंट करना तो आपका काम है। हाँ, ये है कि स्क्रीन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आपको, बच्चे को या आपको, और बच्चे आपको कॉपी करते हैं। आप अगर स्क्रीन एडिक्टेड है तो बच्चे हो जाएंगे। आपको अगर बच्चे का स्क्रीन एडिक्शन हटाना है तो आपको खुद स्क्रीन में कम टाइम स्पेंड करना है। आप किताब लेके बैठेंगे तो आपके बच्चे भी किताब लेके बैठेंगे, लेकिन आप मोबाइल लेके बैठेंगे तो आपके बच्चे भी मोबाइल के लिए रोएंगे।
तो ये जो है ना, ये बच्चे वो बंदर हैं, वो कॉपी करेंगे आपको। आपको मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। And I think for the social media as well, I think parents watching social media and not paying attention to children these days, what happens, they are keeping nannies, they are not upbringing their child themselves. Keeping nannies is okay, but what about the attention that a parent should have given? हाँ, Parent is ये busy scrolling the phone and not paying attention to the emotions and the feelings of the child. अग्री। मतलब अभी रिसेंटली मैं एक पेरेंट से मिली थी, उनको मतलब एलकेजी में बच्चा चला गया। उनको लगता है मेरा काम सिर्फ ये है कि बच्चे को खिला दिया, नहला दिया, सुला दिया और होमवर्क करा दिया। मतलब वो 4 लोग मिलके, दादा-दादी, मम्मी-पापा 4 लोग मिलके एक बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, उसको कुछ सिखा नहीं पा रहे। मतलब उनको पता ही नहीं कि मुझे इनको कुछ सिखाना भी है। उनको लगता है कि बड़ा हुआ तो सीख जाएगा, हम क्या सिखाएँ इसको? तो अगर आप ये बेसिक चीज़ फ़ील ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, तो बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं? ये तो वो बात है कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे अपब्रिंग कर देंगे, वैसे ही बच्चा बनेगा बड़ा। I think we are end of our session because we have addressed the questions that were asked in our life, and yeah, and there is a thank you from Varshali as well as Misha for addressing their questions. Thanks to them and thanks to you again for coming live, and thank you. Thank you I'm grateful everyone to who have, has watched it and who will watch it. yeah, And please yeah, give the sure. response कि आपको, आप कितना कनेक्ट कर पाए, मैंने सही बोला या गलत बोला, आपको क्या सही लग रहा है, Yes. प्रैक्टिकल अप्रोच है कि नहीं है, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। So I think this is the end of our conversation. We'll meet next time again with something new. यस श्योर। Okay. So bye bye everyone, and thank you बाय। for joining us.